Hello dear students, today in this video we are going to understand the concept of average cost, average fixed cost, average variable cost and marginal cost and numericals of cost chapter. Now let us understand the concept of AC, AFC and AVC. Now what is AC? Average cost. Average cost is the cost of producing per unit of output. It is the sum total of average fixed cost and average variable cost. It is expressed as AC equals to AFC plus AVC. Now what is AFC? Average fixed cost is the fixed cost of producing per unit of output. It is expressed as AC minus AVC. यानी कि अगर एवरेज कोस्ट में से एवरेज वेरिएबल कोस्ट को माइनस कर देते हैं तो बनती है AFC, एवरेज फिक्स्ड कोस्ट. Now what is average variable cost? It is the variable cost of producing per unit of output and it is expressed as average variable cost equals to average cost minus average fixed cost. Now let us understand how to calculate AC, AFC and AVC. Now let us take an example. Suppose we are given the example where quantity output 1, 2, 3, 4, average cost is given 14, 12, 11 and 10. Now how to calculate AVC when AFC is also given 12, 6, 4, 3. अब अगर AC और AFC दिया गया है तो AVC कैसे फाइंड करेंगे? तो AVC का फॉर्मूला होता है AC माइनस AFC. तो आप AC में से AFC को माइनस कर दीजिए. 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2, 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6, 11 minus 4 equals to 7 and 10 minus 3 equals to 7. Now if the question comes to calculate AFC when AC and AVC is given, तो AFC कैसे फाइंड करना है? AC माइनस AVC. AC दिया गया है, AVC दिया गया है, AFC निकालना है. तो हम क्या करेंगे? AC में से AVC को माइनस कर देंगे. तो 14 minus 2 that is 12, 12 minus 6 that is 6, 11 minus 7 that is 4 and 10 minus 7 that is 3. Now how to find out AC when AVC and AFC is given? So AC is the sum total of AFC and AVC. So इनका हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे. 12 plus 2 that is 14, 6 plus 6 that is 12, 4 plus 7 that is 11 and 3 plus 7 equals to 10. तो ये तो था how to calculate AC, AFC and AVC. Now what is the relationship? अब हम बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की. तो रिलेशनशिप इज टू इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस लुक एट दिस डायग्राम. y axis and x axis. On y axis AC, AFC and AVC is given and on x axis output is given. Now look at the point. As output increases 1, 2, 3, 4, as output increases, look at the gap. हमें क्या करना है? जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है हमें गैप देखना है कि गैप में क्या चेंजेस आ रहा है. सो एज आउटपुट इंक्रीजेज द गैप बिटवीन AC एंड AVC, देखिए यहां है. अब जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है AC और AVC ऐसे जा रहे हैं और क्या हो रहा है? क्लोजर जा रहे हैं. यानी कि इनके जो बीच का गैप है इन दोनों के बीच में यहाँ गैप ज़्यादा है और यहाँ गैप क्या है? कम है. यानी कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है द गैप बिटवीन AC एंड AVC फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट वन. एज आउटपुट इंक्रीजेज द गैप बिटवीन AC एंड AFC, यहाँ कम था और जैसे जैसे आगे आ रहे हैं गैप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो एज आउटपुट इंक्रीजेज द गैप बिटवीन AC एंड AFC राइजेज. सो देयर आर 2 points. फर्स्ट, as output increases the gap between AC and AVC falls and second, as output increases the gap between AC and AFC rises. Now एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि इन दोनों का गैप डिक्रीज हो रहा है तो क्या AVC एवरेज वेरिएबल कोस्ट एवरेज कोस्ट को टच या इंटरसेक्ट कर सकता है? तो आंसर आएगा नहीं. AVC कैन नेवर टच और इंटरसेक्ट AC because the gap between AC and AVC is AFC. इन दोनों के जो बीच का गैप है ना वो AFC है और जब तक ये ज़ीरो नहीं होता ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते और AFC कभी ज़ीरो नहीं होता है, इसलिए AVC कभी भी AC को टच नहीं कर सकता है. सो लेट्स रिवाइज. फर्स्ट पॉइंट,
as output increases, the gap between AC and AVC falls. Second point, as output increases, the gap between AC and AFC rises. AVC can never touch or intersect AC because the gap between AC and AVC is AFC, and AFC can never be 0. So the gap between AC and AVC can also never be 0. I hope, dear students, the concept of AC, AFC and AVC is clear to you all. Now let us understand how to calculate total cost from average cost and average cost from total cost. Now, dear students, let us understand how to calculate the numericals of cost. Now look at the numerical. Output is given and total cost is given. We are to find out total fixed cost, total variable cost, average fixed cost and average variable cost, and लास्ट में हमें marginal cost भी फाइंड करना है, जो कि हम डिस्कस करेंगे क्या होता है. Now let us understand how to solve such numericals. First of all, keep some points in mind. First, when output equals to 0, TC equals to TFC. जब भी आउटपुट 0 होता है तो टोटल कोस्ट टोटल फिक्स्ड कोस्ट के इक्वल होती है. सो हियर आउटपुट इज 0. सो जो भी टोटल कोस्ट है ये टोटल फिक्स्ड कोस्ट के इक्वल होनी चाहिए. और ये इक्वल कब होगी? जब ये भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. यानी कि व्हेन आउटपुट इज 0, TC इज इक्वल्स टू TFC. सो इफ TC इज 12, द TFC विल ऑल्सो बी 12. और जो TFC होती है इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट. यानी कि एक कांस्टेंट होती है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता. तो TFC फाइंड हो गई. नाउ TVC इक्वल्स टू TC माइनस TFC. अगर आप टोटल कोस्ट फाइंड कर लेते हैं, टोटल फिक्स कोस्ट फाइंड कर लेते हैं, टोटल वेरिएबल कोस्ट फाइंड कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान है. हमें TVC फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? TC में से TFC को माइनस कर रहे हैं तो दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 0. 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 8. 26 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 14. 30 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 18. 32 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 20. तो TVC भी फाइंड हो जाता है. एवरेज कोस्ट कैसे निकालना है? याद रखिए, कोई भी एवरेज कोस्ट निकालनी हो उसी की टोटल कोस्ट को डिवाइड कर देना है आउटपुट से. ऐसे ही अगर एवरेज फिक्स्ड कोस्ट निकालनी है तो टोटल फिक्स्ड कोस्ट को डिवाइड कर देना है आउटपुट से. और अगर एवरेज वेरिएबल कोस्ट निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कोस्ट को डिवाइड कर देना है आउटपुट से. तो ऐसे हम एवरेज कोस्ट निकाल सकते हैं. टू कैलकुलेट एवरेज कोस्ट, डिवाइड इट्स टोटल कोस्ट बाय आउटपुट. सो अगर हमें AC फाइंड करना है तो हम TC को आउटपुट से डिवाइड करेंगे. अब 12 को 0 से डिवाइड करो तो किस x को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है इन्फिनिट. 20 को 1 से डिवाइड करो 20. 26 को 2 से डिवाइड करो 13. 30 को 3 से डिवाइड करो 10. 32 को 4 से डिवाइड करो 8. एवरेज कोस्ट फाइंड हो जाता है. अब हम बात करते हैं एवरेज फिक्स कोस्ट की. तो टोटल फिक्स कोस्ट को डिवाइड करना है आउटपुट से, इसको इससे डिवाइड करना है इन्फिनिट. 12, 12 बाय 2, 6, 12 बाय 3, 4 एंड 12 बाय 4, 3. डिवाइड करते हैं, क्या आता है? डैश. नाउ अगर हम TVC को 1 से डिवाइड करेंगे दैट इज 8. 14 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 7. 18 को 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 6 एंड 20 को 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज 5. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है कि कैसे हम दिए गए न्यूमेरिकल से टोटल फिक्स कोस्ट, टोटल वेरिएबल कोस्ट, एवरेज फिक्स कोस्ट और एवरेज वेरिएबल कोस्ट को फाइंड कर सकते हैं. अब अगर किसी वजह से एवरेज कोस्ट दी जाती और टोटल कोस्ट के लिए कहा जाता तो हम क्या करते? तो याद रहे, कोई भी टोटल निकालने के लिए उसी की एवरेज को इनटू कर देते हैं आउटपुट से. तो अगर टोटल कोस्ट निकालनी है तो एवरेज कोस्ट को इनटू करेंगे आउटपुट से.
अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को इनटू कर देंगे आउटपुट से, और अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इनटू कर देंगे आउटपुट से। तो अगर किसी वजह से ये दिया जाता और ये निकालना होता तो हम क्या करते, इन दोनों की इनटू कर देते। तो देखो बेटा 20 × 1 दैट इज 20, 13 × 2 दैट इज 26, 10 × 3 दैट इज 30 एंड 8 × 4 दैट इज 32। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। नाउ हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट की n वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट की n-1 वैल्यू, और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो जब भी हम सिंपल वर्ड में बात करते हैं, जब भी नया या एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो उस पर जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस आते हैं उसको मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। फॉर्मूला ये रहा कि टोटल कॉस्ट की n वैल्यू में से टोटल कॉस्ट की n-1 वैल्यू को माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आउटपुट अगर 0 है तो मार्जिनल कॉस्ट कभी नहीं आ सकती, मार्जिनल कॉस्ट होती है डैश। अब बात आती है कैसे फाइंड करें, तो टोटल कॉस्ट की हर नई वैल्यू में से पुरानी माइनस करनी है। तो 20 - 12 आ जाता है 8। अब 26 नई वैल्यू है तो 26 - 20 आ जाता है 6। नाउ 30 नई वैल्यू है तो 30 - 26 आ जाता है 4। नाउ 32 - 30 आ जाता है 2। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स द कंसेप्ट ऑफ TC, TFC, TVC, AC, AFC, AVC and MC is clear to you all, and how to calculate their numericals is also clear to you all. Now let us understand some relationships. Now dear students, let us understand the relationship between average cost and marginal cost here. Now see, when average cost decreases, you can see here, when average cost decreases, marginal cost also decrease, but एवरेज कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है, बट एट दिस पॉइंट एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है। कैसे पता चला? पता चला यहां से, क्योंकि कॉस्ट यहां पर है। तो अगर हम देखते हैं देन दिस इज मार्जिनल कॉस्ट लाइक 2 एंड दिस इज एवरेज कॉस्ट लाइक 4। तो आप देख रहे हैं कि जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस, एवरेज कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। नाउ लुक एट आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर पॉइंट ई, व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस। अब एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस, एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है तो एवरेज कॉस्ट कम होती है और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होती है। फिर से वही कर्व है, आप देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो नीचे और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो ऊपर है। और एट पॉइंट ई, दिस पॉइंट, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। यानी कि जब भी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है। तो केवल 3 बातें याद रखनी है। व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस, इट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस, इट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। एंड व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, इट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। Now dear students, let us understand the relationship between total cost and marginal cost. Now here you can see the line. At this line, हम इस लाइन से, इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद की बात करते हैं। Now here you can see total cost increasing and marginal cost is decreasing. Marginal cost is the rate of total cost. तो total cost में जो भी changes होते हैं वो उस रेट से चेंजेस होते हैं जिस रेट से मार्जिनल कॉस्ट चल रही है। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो टोटल कॉस्ट में चेंजेस होंगे डिक्रीजिंग रेट पर। अगर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो टोटल कॉस्ट में चेंजेस होते हैं इंक्रीजिंग रेट पर। तो आइए समझते हैं। नाउ लुक एट द पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, फ्रॉम हियर टू हियर टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग
and total cost is increasing at decreasing rate, cause marginal cost is the rate of total cost. Here total cost is increasing and marginal cost is decreasing, so total cost is increasing at a decreasing rate. After this point, total cost is increasing, marginal cost is also increasing, so total cost is increasing at increasing rate. And when marginal cost is at the lowest point, total cost changes its rate. तो 3 पॉइंट हो गए. फर्स्ट, total cost is increasing at decreasing rate, total cost is increasing at increasing rate, and when marginal cost is lowest, total cost changes its rate of increase. ठीक है. So I hope, dear students, the relationship between total cost and marginal cost is clear to you all. Now let us understand the relationship between AC, AFC, AVC and MC. Now dear students, you can see as output increases, the gap between AC and AVC falls. As output increases, the gap between AC and AFC rises. AVC can never touch or intersect AC because the gap between AC and AVC is AFC and it can never be zero. Now the final, क्योंकि ये रिलेशनशिप हम पहले भी समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं मार्जिनल कोस्ट के साथ इनका क्या रिलेशन है. सो देयर सिंपल लाइन दैट मार्जिनल कोस्ट इंटरसेक्ट एवरेज वेरिएबल कोस्ट एंड एवरेज कोस्ट एट देयर लोवेस्ट पॉइंट. मार्जिनल कोस्ट एवरेज वेरिएबल कोस्ट और एवरेज कोस्ट को उनके लोवेस्ट पॉइंट पर कट करती है. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको कोस्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो. आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.